Morning students. Yesterday we had finished up to the sex determination part. Today we deal with the pedigree analysis. What is pedigree analysis? In a very simple way you can understand that it is an analysis in which we study the inheritance in the form of a family tree over several generations. So analysis of the traits in several generation of a family is called pedigree analysis. Now they means you should have to uh, you have to study the inheritance in the form of a tree, okay, which we will see later on. Okay, it is not meant that tree means the normal tree, means in the form of a structure which looks like a tree. Okay, uh, then the pedigree analysis is useful in study the particular traits to study abnormalities and diseases. Now the diseases may be due to genetic disorders, and they are categorized into two, that is Mendelian disorders and chromosomal disorders. Mendelian disorders, whatever the Mendelian traits you have learned in the previous sections, and chromosomal disorders, in which we study the disorders which results due to the chromosomes, either the addition of the chromosome or deletion of the chromosome, and in Mendelian disorders the genes, okay, the traits. So these are transmitted to the these are transmitted, and the affected individual is sterile, not fertile. So they are always this is always dominant in nature. Now there is a uh, this differentiation between Mendelian disorders and chromosomal disorders. Okay, so Mendelian disorders, they are due to the alteration in a single gene. You learned this. Mendel studied the genes. Then they are transmitted into generation through Mendelian principles of inheritance. Whatever the Mendelian inheritance patterns or the principles you have learned in the form of the laws. These examples are color blindness and phenylketonuria. Here is a spelling mistake. So this is not phenylketonuria, it is phenylketonuria. Okay. So chromosomal disorders are caused due to the absence or excess of one or more chromosomes, or abnormal aggregation of one or more chromosomes. Okay. Generally the chromosome structure is of बाइवेलेंट, ओके, मतलब कैसे होता है, एक इस तरीके से होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स हैं, 23 पेयर्स हैं आपके क्रोमोसोम्स के, तो उसमें एडिशन हो जाए पेयर का या डिलीशन हो जाए तो उससे हो जाता है। दे मे बी रेसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर। रेसेसिव भी हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और डोमिनेंट भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स एट्सेट्रा। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स विच इज़ हीमोफीलिया. Hemophilia is a disease in which the infected individuals lost the capability of blood clotting, means if there is a minor cut it leads to a non-stop bleeding. So that disease is known as hemophilia. Now how it is caused? The heterozygous female means if you memorize that there are two conditions, homozygous and heterozygous. If this is a condition it is homozygous condition, but if this is the condition it is heterozygous condition. Okay, this you already know. So hemophilia is transmitted by a heterozygous female which is a carrier, means the female is not the main affected individual, but it is a carrier for transmitting the diseases to their sons. means जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगा वो कैरियर होगा, जैसे मलेरिया के केस में जो मॉस्किटो है वो कैरियर है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। मैं कैरियर का मतलब समझा रही हूँ आपको यहाँ पे। और ट्रांसमिट जो डिजीज़ होगा वो सन में होगा, यानी जो ऑफ स्प्रिंग में जाएगा वो सन में जाएगा, डॉटर में नहीं जाएगा। वो मैं भी आपको बताऊँगी क्यों, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ याद रखिए। और फीमेल जो होती है, जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग है, वो हीमोफिलिक नहीं होती है, एक्सट्रीमली रेयर होती है, क्योंकि जो मदर है उसकी वो कैरियर है और फादर क्या है, हीमोफिलिक है। यानी फादर हीमोफिलिक है, उसको डिजीज़ है हीमोफीलिया, और मदर जो है वो कैरियर है।
अब यहाँ देख लीजिए आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फिगर के अंदर आप देखिए, यू सी क्लियरली कि कैरियर वोमेन, आपको पता ये क्या है, सेक्स लिंक डिजीजेज है। दो तरीके के डिजीजेज होते हैं, सेक्स लिंक्स या ऑटोसोमल। तो जो सेक्स क्रोमोजोम है वो आपके एक्स एक्स होते हैं और एक्स वाई होते हैं, यही तो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। और इसके अलावा जितने पेयर्स हैं बॉडी के अंदर वो ऑटोसोम्स हैं। तो ये क्या है, सेक्स लिंक डिजीज़ है। तो अब यहाँ पे क्या है, कैरियर वोमेन, तो ओबियसली एक्स एक्स को आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये कैरियर है और ये नॉर्मल मैन है, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए कैरियर कंडीशन है, तो ये इसके ऊपर एच लगा हुआ है कैरियर। अगर ये हीमोफिलिक होता तो दोनों के ऊपर एच लगा होता है, एक्स के ऊपर। कैरियर है इसलिए सिर्फ एक एक्स के ऊपर लगा हुआ है, यानी एक क्रोमोजोम का जो पेयर है वो है पार्ट, उसके ऊपर एच लगा हुआ है। अब जब इसका ओवा और स्पर्म्स का फ्यूजन हुआ, गैमीट बने, तो आपने यहाँ पर एक्स एक्स ले लिया और यहाँ पर आपने एक्स वाई ले लिया, जिस तरीके से पनेट बनाते हैं। तो देखिए जब आपने क्रॉस किया तो एक्स 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 वाई, और मेन यहाँ पर आप देखिए जो एक्स एक्स आए हैं यहाँ पर, वो क्या आए हैं, कैरियर आया है, देख रहे हैं, और वो गर्ल है। और जो बॉय है उसके अंदर आप देखिए हीमोफिलिक बॉय, उस वो क्या है आपका, बॉय के अंदर जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, हीमोफीलिया आ रही है। देख रहे हैं आप, हीमोफिलिक बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वन नॉर्मल गर्ल वन कैरियर गर्ल, वन नॉर्मल बॉय वन हीमोफिलिक, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है आपको। तो वन नॉर्मल बॉय वन हीमोफिलिक। तो अब यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाती है कि इस तरीके से आपका ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे उसमें कैरियर गर्ल होगी और हीमोफिलिक बॉय होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्रॉस निकाल लिया। दूसरी आपका जो डिजीज़ आएगा वो आएगा सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया जो है ऑटोसोम लिंक डिजीज़ है, रेसेसिव ट्रेट है, और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का अंडर वो जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर पॉलीमराइजेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है लो ऑक्सीजन टेंशन के अंदर, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, यानी कि जो हमारे आरबीसी हैं उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, और वो एक बाइकॉन्वेक्स डिस्क का शेप ले लेते हैं, और उसी को कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। क्योंकि क्या हुआ कि उसके अंदर अनीमिक कंडीशन डेवलप होने लगती है। ये डिफेक्ट किसकी वजह से होता है, ये डिफेक्ट होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। या आप आगे पढ़ेंगे मॉलिकुलर बेसिस में कि इसकी चेन किस तरीके से होती है, और इससे रिज़ल्ट हो जाता है आपका सिकल सेल अनीमिया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिया है हीमोग्लोबिन के लिए HB एब्रिएशन लिए हैं, और ए के ऊपर ए लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्रिविएशन यहाँ पर लिखे भी हुए हैं, नॉर्मल रेड ब्लड सेल, सिकल सेल ट्रेट और सिकल सेल अनीमिया। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, सिकल सेल अनीमिया की हो गई। तो आज दो ही डिजीज़ रख लेते हैं, यहाँ पर आपको हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया समझ में आ गया होगा, आई होप, कि किस तरीके से हो रही है ये कंडीशन। तो लेट्स स्टॉप हेयर, ओके।